बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है इंटीजर्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, सम अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ 1 and 0, related word problems. Now, introduction. In previous classes, we have already studied about integers and their representation on a number line. We have also discussed the 4 fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division on integers. Now, fundamental operations on integers. There are 4 fundamental operations. First is addition of integers, second, subtraction of integers, third, multiplication of integers, and fourth is division of integers. Now first is addition of integers. On a number line, when we add a positive integer to a given number, we move to the right, and when we add a negative integer, we move to the left. Example से करते हैं इसको. 7 plus 4, 7 both are positive integers. 7 तो हम नंबर लाइन पे 0 से कहाँ मूव करेंगे? 7 पे मूव करेंगे. प्लस 4 हमें पॉजिटिव नंबर को ऐड करना है, तो मूव राइट साइड, राइट. 1 2 3 4, देन आफ्टर 4 काउंटिंग वी रीच एट 11. सो 7 plus 4 is equals to 11. नाउ एग्जाम्पल 2, 8 plus अंडर ब्रैकेट -5. हम कहाँ पे हैं अभी? 0 से लेके हम कहाँ गएंगे? 8 पे. एंड वी हैव टू ऐड -5. -5 इज अ नेगेटिव इंटीजर, सो हम किस साइड मूव करेंगे? लेफ्ट साइड. तो 7 6 5 4 3, वी रीच एट 3. बिकॉज -5 है तो हमने किस साइड मूव किया? लेफ्ट साइड मूव किया. सो 8 plus अंडर ब्रैकेट -5 is equals to 3. Now second is subtraction of integers. On a number line, when we subtract a positive integer from a given number, we move to the left, and when we subtract a negative integer, we move to the right. Example से करते हैं. Example 1, 10 minus 6 is equals to, हम कहाँ पे हैं अभी? 0 से हम कहाँ हैं? 10 पे. We are on 10 and we have to subtract a positive integer, that is 6. तो we move left side. 6 points हम कहाँ जाएंगे? 9 8 7 6 5 4. We reach at 4. Now answer is 4. Now example 2, 6 minus under bracket -4. We are on 6. हम 0 से कहाँ हैं? 6 पे. एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4. जब हम नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी मूव टू द राइट साइड. 7 8 9 10, वी रीच एट 10. तो आंसर इज 10. नाउ थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. The product of two positive integers is always positive. Example से करते हैं. Example 1, A part 3 multiplied by 7 is equals to 21. 3 7s are 21. B part plus 4 multiplied by plus 8. 4 8s are 32. Both are positive integer, so product is also positive. The product of two negative integers is always positive. अगर दोनों हमारे integers negative है, then also answer will be positive. Example से करते हैं. Example 2, A part -3 multiplied by -5. 3 5s are 15. Both are negative integers. दोनों negative integers हैं, multiply होंगे, answer will be positive. B part -8 multiplied by -15, that is equals to 120. Again both are negative integer, product will be positive. Now fourth is division of integers. For any two integers A and B where B is never equals to 0, we have A divided by -B is equals to -A divided by B, and -A divided by -B is equals to A divided by B. एग्जाम्पल से करते हैं इसको. A part
माइनस 289 इज डिवाइडेड बाय 17. सो सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं आंसर विल बी 17. माइनस 289 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल्स टू माइनस 17. आंसर हमारा किस में आएगा? माइनस में. बी पार्ट 225 इज डिवाइडेड बाय माइनस 15. हम माइनस 15 से डिवाइड करेंगे, देन सेम डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 15 एंड one part is negative, then answer will also be in negative. C part, minus 625 is divided by minus 25. Both are negative. Both are negative. Answer will be positive because minus से minus हम क्या कर देंगे? Cancel कर देंगे. Answer will be 25. Now, no more. To add two integers of the same sign, add their absolute value and put the common sign. To add two integers of the opposite signs, find the difference in their absolute values and put the sign of the number with greater absolute value. Now, properties of integers. We will study here about different properties of different operations for integers. Properties of integers. First is closure property. Addition, subtraction and multiplication of two integers always gives an integer. Integers are closed under addition, subtraction and multiplication. Division of two integers need not to give an integer. Integers are not closed under डिवीजन. दैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन में जो भी हम दो नंबर्स का ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी अ इंटीजर, बट डिवीजन में इंटीजर may not be possible. Now next is commutative property. Addition and multiplication are commutative for integers. Subtraction and division are not commutative for integers. That means ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पे नहीं. नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Addition and multiplication are associative for integers. Subtraction and division are not associative for integers. In the same way, addition और multiplication पे associative property applicable है, subtraction and division पे नहीं है. Now next is distributive property of multiplication. Multiplication is distributive over addition and subtraction for integers. Now next is identity elements. 0 is the additive identity for integers. 1 is the multiplicative identity for integers. Now, let us check whether these properties hold for integers or not. First is closure property. Under addition. In generally, for any two integers a and b, a plus b is also an integer. We observe that integers are closed under addition. Observe the following example. First, 8 plus 5 is equals to 8 plus 5 is equals to 13. 13 which is an integer. Second, minus 9 plus 2 is equals to minus 9 plus 2 is equals to minus 7 which is an integer. 17 plus under bracket minus 12. 17 minus 12 is also equals to 5 which is also an integer. Fourth, minus 23 plus under bracket minus 21. Both are negative. Minus 23 minus 21 दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. 44 दोनों के सामने माइनस का साइन है, minus 44 which is also an integer. Now next is under subtraction. In generally, for any two integers a and b, a minus b is also an integer. We observe that integers are closed under subtraction. Now, evaluate the following problems. One has been done for you. A and B. यहाँ पे हमें कुछ values दी है. A and B. A minus B. 9 minus 4 is equals to 5. Right? Now next, A is minus 25 and B is minus 23. Both are negative. बोथ आर नेगेटिव. दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और माइनस का साइन आ जाएगा. ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नेक्स्ट इज 10
एंड 16 बोथ आर पॉजिटिव, ऐड करेंगे प्लस का साइन आएगा, विच ऑल आर इंटीजर्स। 24 माइनस 19, 24 में से हम 19 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 24, आंसर विल बी इन पॉजिटिव। आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम माइनस करेंगे एंड आंसर विल बी पॉजिटिव। ऑल आर इंटीजर्स। इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स एन इंटीजर? यस। यहां देखो 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। जब हम 25 और 23 को करेंगे दैट आंसर विल बी 47 माइनस 47, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे तो हम देखेंगे ऑल आर इंटीजर्स। आर इंटीजर्स क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? यस। नाउ नेक्स्ट इज अंडर मल्टीप्लीकेशन। The product of two integers is always an integer. For any two integers a and b, a multiplied by b is an integer. Observe the following examples. First, 5 multiplied by 6 is equals to 30, which is an integer. Second, 8 multiplied by minus 3, that is equals to minus 24, which is also an integer. Third, minus 5 multiplied by minus 7, 35, 5 7s are 35, दोनों नेगेटिव हैं, आंसर विल बी पॉजिटिव, विच इज ऑल्सो एन इंटीजर. फोर्थ, minus 7 multiplied by 4, that is equals to 28, different sign है, आंसर will be negative, which is also an integer. Now no more. These are some operations, that means प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है आंसर विल ऑलवेज बी इन माइनस, नेगेटिव. माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज ऑल्सो माइनस, क्योंकि दोनों क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मीन्स बोथ इंटीजर्स आर इन नेगेटिव, देन आंसर विल बी पॉजिटिव. प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस बोथ आर पॉजिटिव, देन आंसर विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, दैट इज प्लस. नाउ नेक्स्ट इज अंडर डिवीजन. In generally, for any two integers a and b, where b is never equals to 0, a divided by b need not be an integer. We observe that integers are not closed under division. Let us check the closure property for division of two integers. Complete the following table. Now a is 40 and b is 8. 40 is divided by 8 is equals to 5. It is an integer, but 8 is divided by 24 is equals to 1 by 3. It is not an integer. In the same way, minus 30 is divided by minus 5 is 5 6 are 30. It is an integer. Minus 48 is divided by 12 is equals to minus 4. But it is not an integer. So, is the division of two integers an integer? May or may not be. हो भी सकता है, जैसे इन सभी में इंटीजर है बट इट्स नॉट एन इंटीजर. आर इंटीजर्स क्लोज्ड अंडर डिवीजन? नो. नाउ नो मोर. प्लस इज डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस इज डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस इज डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस इज डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल्स टू प्लस. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. First is under addition. In generally, for any two integers a and b, a plus b is equals to b plus a. That means हम उनका order change करेंगे तो answer will be same. Take any two integers and write them under column a and b. Then find a plus b and b plus a. Now a b हमें गिवन है प्लस 8 माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 1. नाउ b प्लस ए, b प्लस ए हमने क्या किया, इनका ऑर्डर चेंज किया, पहले b लिखा फिर a लिखा. माइनस 9 प्लस 8 इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस 1. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. इज a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a? यस और नो? यस. हमने देखा यहाँ पे हमने a प्लस b किया, then answer will be minus 1. b plus a किया, then also answer will be minus 1. So it is true. In the same way, minus 7 plus 9. यहाँ पे हमने क्या किया, minus 7
प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू प्लस 2. कितना है हमारा? प्लस 2. अब हम क्या करेंगे? 9 प्लस 9 प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस 7. हमने क्या किया? इसकी ऑर्डर चेंज किया. 9 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2. इन बोथ द सिचुएशन आंसर इज 2. तो हमारी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है? यस. ऐसे ही आप थर्ड वाला करके देखेंगे. वी सी द टेबल गिवन अबाउट दैट 2 integers can be added in any order. Therefore, addition is commutative for integers. Now, next is under subtraction. Take any 2 integers and write them under columns A and B. Then find the value of A minus B and B minus A. Check whether under bracket A minus B is equals to under bracket B minus A. One has been done for you. यहाँ पे भी हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन में A and B, A minus B and यहाँ पे हमने क्या किया? ऑर्डर चेंज किया B minus A. हमें चेक करना है is A minus B is equals to B minus A. Yes or no? फर्स्ट देखो 8 पॉजिटिव है माइनस 17 माइनस 8 माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस 17 तो हमारा आंसर आया 25. नाउ ऑर्डर चेंज किया माइनस 17 प्लस अंडर ब्रैकेट प्लस 8 आंसर विल बी माइनस 9. हमने देखा दोनों ही सिचुएशन में आंसर क्या है? डिफरेंट है. दैट मीन्स इट्स प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट देखेंगे क्या है? माइनस 15 ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू कितनी है? बी इज 18, बी इज प्लस 18. राइट. हमें क्या करना है? ए माइनस बी. ए माइनस बी किया. ए कितना है हमारा? माइनस 15 माइनस करेंगे अंडर ब्रैकेट प्लस 18. कितना आएगा हमारा यहाँ पे? माइनस 15 माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस 18 दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस 15 माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा माइनस 18. आंसर विल बी माइनस 33. अब हम क्या करेंगे? ऑर्डर चेंज करेंगे बी माइनस ए. बी माइनस ए. बी कितना है हमारा? 18 माइनस अंडर ब्रैकेट ए कितना है? माइनस 15. 18 माइनस माइनस प्लस 15 आंसर इज प्लस 33. दोनों सेम नहीं है. एक में क्या आया हमारा? माइनस 33 और यहाँ पे आया प्लस 33. तो हमारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे इसका. इज सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स? नो. वी कैन से दैट जनरली फॉर एनी 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स A and B, A minus B is not equals to B minus A. कि अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारा आंसर सेम नहीं रहेगा. We observe that integers are not commutative under subtraction. Subtraction में हमारा ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है. Now next is under multiplication. In general, for any 2 integers A and B, A multiply by B is equals to B multiply by A. कि अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर विल बी सेम. नाउ लेट अस चेक द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 2 integers. फॉर द गिवन integers A and B, find the value of A multiply by B and B multiply by A. Also check whether A multiply by B is equals to B multiply by A. Complete the following table. One has been done for you. यहाँ पे भी अगेन हमें क्या गिवन है? A and B. राइट. एक बार हम क्या करेंगे? A मल्टीप्लाई बाय B. फिर हम ऑर्डर चेंज करेंगे B मल्टीप्लाई बाय A. इज A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाय A. यस और नो. हमें बताना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं. फर्स्ट है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6. 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 30. हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. नेगेटिव का साइन आएगा. माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा? माइनस 30. दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे एप्लीकेबल है. सेकेंड है 8 मल्टीप्लाई बाय 5. 8 5 जा 40 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज ऑल्सो 40. यस.
नेक्स्ट आप खुद ट्राई करेंगे. इज मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स? यस, it is commutative. We observe that integers are commutative under multiplication. Now next is under division. In general, for any two integers a and b, a is divided by b is not equals to b divided by a. हम यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. For the given non-zero integers a and b, find a divided by b and b divided by a. Also check whether a divided by b and b divided by a are equal. Enter the answers in the following table. One has been done for you. Again हमें given है a की वैल्यू and b की वैल्यू. हमें चेक करना है a divided by b and b divided by a both are equal or not. हमें आंसर देना है किसमें? yes और no में. Now 25 minus 25 is divided by 5 is equals to minus 5. 5 is divided by minus 25, then answer is 1 upon minus 5. Both are not equal, answer will be change. तो हमारी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है. Now minus 11 is divided by minus 11, answer is 1. नाउ यहाँ पे तो क्योंकि a और b दोनों इक्वल हैं तो आंसर इक्वल ही आएगा. यहाँ पे हमारा यस है. थर्ड हम चेक करते हैं. 28 इज डिवाइडेड बाय माइनस 27, तो आंसर कितना रहेगा? 28 डिवाइडेड बाय माइनस 27. जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? माइनस 27 डिवाइडेड बाय 28, विच बोथ आर नॉट इक्वल. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा नो. तो कुछ सिचुएशन में जब हमारा a और b इक्वल है तो हमारा आंसर आएगा यस में, अदरवाइज नो. आर ऑल द वैल्यूज इन द कॉलम a डिवाइडेड बाय b एंड b डिवाइडेड बाय a इंटीजर्स? बोथ आर इक्वल? नो. इज डिवीजन कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स? आंसर इज नो. वी ऑब्जर्व दैट इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Now first is under addition. Addition for integers is associative. In generally for any integers a, b and c, यहाँ पे हमारे 3 integers हैं, we can say that a plus under bracket b plus c is equals to under bracket a plus b bracket close plus c. That means हमारे पास कितने integers हैं? 3 integers हैं. उनमें हम उनको प्लस करने के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो आंसर रहेगा सेम. जैसे पहले हमने ग्रुपिंग की b प्लस सी की और a को से बाद में प्लस किया. इज इक्वल्स टू पहले हमने ग्रुप किया किसको? a प्लस b को और c को बाद में ऐड किया. लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आंसर क्या रहेंगे हमारे? सेम. अभी चेक करेंगे. सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. कंसीडर 3 इंटीजर्स -8, -6 एंड -9. देन फाइंड वेदर इज -8, यहाँ पे हमने a को अलग रखा, -6 प्लस अंडर ब्रैकेट -9 को एक साथ प्लस किया इज इक्वल्स टू. अब हमने क्या किया? a और b को एक साथ प्लस किया, -8 प्लस अंडर ब्रैकेट -6 ब्रैकेट क्लोज और -9 को बाद में किया. नाउ लेट अस वेरीफाई बाय एडिशन वे. -8 प्लस अंडर ब्रैकेट -6 प्लस -9 is equals to under bracket -8 plus -6 bracket close plus under bracket -9. यहाँ पे हमने क्या किया? पहले -8 को अलग रखा, पीछे के दोनों नंबर्स को ऐड किया तो कितना है हमारा? -15 प्लस फिर हमने a प्लस b को पहले प्लस किया, आंसर इज -14 और c को बाद में ऐड किया, दैट इज -9. दोनों ही सिचुएशन में आंसर कितना है हमारा? -23 इज इक्वल्स टू -23. तो इसका मतलब हमारी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कहाँ पे? अंडर एडिशन. नाउ नेक्स्ट इज अंडर सब्ट्रैक्शन. इन जनरल फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स a, b and c, a minus under bracket b minus c is not equals to under bracket a minus b minus c. See the following example for verification. Let us a is equals to 9, b is equals to 7 and c is equals to 4. Now we see. अब हमने यहाँ पे भी क्या किया? इनकी ग्रुपिंग को चेंज किया. पहले हमने क्या किया? a को अलग रखा 9
माइनस अंडर ब्रैकेट 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, नाउ कितना है हमारा 9 माइनस 7 माइनस 4 इज 3, नाउ 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। अब हम क्या करेंगे, हम a माइनस b को पहले माइनस करेंगे, 9 माइनस 7 माइनस c को हमने बाद में रखा, 9 माइनस 7 क्या आंसर इज 2, 2 माइनस 4, 2 minus 4 answer is minus 2. So we can observe that 9 minus under bracket 7 minus 4 is not equals to under bracket 9 minus 7 minus 4. That is, subtraction of integer is not associative. That means associative property हमारी subtraction पे applicable नहीं है. Now next is under multiplication. The multiplication of integers is associative. That is, for any three integers a, b and c, we have a multiplied by under bracket b multiplied by c is equals to under bracket a multiplied by b multiplied by c. That means यहाँ पे हम grouping change करेंगे, answer will be same. First example देखते हैं इसका. We have minus 4 multiplied by under bracket 7 multiplied by minus 5. यहाँ पे हमने a को अलग रखा, b और c को पहले मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 एज इट इज, 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 140. नाउ अब हम क्या करेंगे, a और b को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और c को बाद में करेंगे. नाउ माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, 4 7 जा 28, माइनस 28 को मल्टीप्लाई करेंगे c से, दैट इज माइनस 5, 28 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू, दोनों नेगेटिव है, प्लस में आंसर आएगा, आंसर इज 140. बोथ सिचुएशन में आंसर विल बी सेम, दैट इज माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 इज इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5. सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे. सेम इसमें भी हमने वही किया, a को सेपरेट रखा, b और c को मल्टीप्लाई किया, कितना आया माइनस 5, 2 3 जा 6, आंसर इज माइनस 30. अब हम a और b को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 30. दोनों इस सिचुएशन में आंसर सेम है, दैट मीन्स माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3. दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे एप्लीकेबल है. Now next is under division. In generally, for any three distinct non-zero integers a, b and c, a divided by under bracket b divided by c is not equals to under bracket a divided by b divided by c. यहाँ पे अगर हम इनकी grouping को change करते हैं, then answer will not be equal. Consider any three integers. We can say a is equals to 24, b is equals to 16 and c is equals to 8. नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, b और c की ग्रुपिंग करेंगे. 24 a को सेपरेट रखा, डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 8. 24 16 को 8 से डिवाइड किया, कितना रहा 2, 24 को डिवाइड किया 2 से, आंसर इज 12. अब हम ऑर्डर चेंज करेंगे, अब हम a डिवाइडेड बाय b पहले करेंगे, a डिवाइडेड बाय b, a इज 24 इज डिवाइडेड बाय 16 देन डिवाइडेड बाय c दैट इज 8. 24 को 16 से डिवाइड किया, 3 डिवाइडेड बाय 2 आया, 3 बाय 2 आया, डिवाइडेड बाय 8 किया, देन आंसर इज 3 अपॉन 16 नॉट इक्वल. सो 24 is divided by under bracket 16 divided by 8 is not equals to under bracket 24 divided by 16 divided by 8. That means division पे property applicable नहीं है. Therefore we observe that integers are not associative under division. Now fourth property, distributive property. Multiplication of integers is distributive over addition. For any integers a, b and c, we have distributive over addition. That means क्या है, a multiply by b plus c, a multiply by अंडर ब्रैकेट b प्लस c. अब हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट b प्लस c से, तो a को हम b से भी मल्टीप्लाई करेंगे और a को हम c से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में कौन सा साइन है, b प्लस c, तो बीच में हम लगाएंगे प्लस का साइन. a मल्टीप्लाई बाय b प्लस अंडर ब्रैकेट a मल्टीप्लाई बाय c. वी हैव एग्जाम्पल देखते हैं रिलेटेड. फर्स्ट,
-4 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस अंडर ब्रैकेट -4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू, यहां पे हमने क्या किया, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। हमारा यहाँ पे a कितना है -4, b इज -6 एंड c इज 3। तो हमने क्या किया, क्या है हमारी प्रॉपर्टी, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। तो a मल्टीप्लाई बाय b, बीच में प्लस है, a मल्टीप्लाई बाय c। तो यहाँ पे हमने a कितना है -4 मल्टीप्लाई बाय b इज -6 प्लस a इज -4 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12, 24 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12 एंड -4 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट -6 प्लस 3। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट -6 प्लस 3। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं जो हम बोर्ड मास में करते हैं, -6 प्लस 3 इज 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। -4 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 3, -6 में से 3 माइनस होगा 3, 4 3 ज़ा 12, आंसर कितना आया 12। आंसर दोनों ही सिचुएशन में, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी एप्लीकेबल है। सो -4 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट -6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड एग्जाम्पल, -3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -7। यहाँ पे हमने पहले क्या किया, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, आंसर इज 15 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 36। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट -5 प्लस अंडर ब्रैकेट -7, दैट इज इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाई बाय -5 -7 इज -12, -3 मल्टीप्लाई बाय -12 इज इक्वल्स टू 36। दोनों ही सिचुएशन में आंसर विल बी +36। सो -3 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट -5 प्लस -7 इज इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -7। नाउ नोट, a direct consequence of the distributivity of multiplication over subtraction is, अगर हमारा हमने क्या किया, multiplication over addition, अगर subtraction है तो जहां हमारा क्या था b प्लस c था, वहां पे हमारा हो जाएगा b माइनस c, दैट इज a मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट b माइनस c इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b, बीच में क्योंकि subtraction का साइन है तो माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। Now fifth is identity elements. Multiplicative identity. For every integer a, we have a multiplied by 1 is equals to a is equals to 1 multiplied by a. The integer 1 is called the multiplicative identity for integers. Multiplicative inverse. The product of any non-zero integer and its reciprocal gives the result as 1. In general, if a is any non-zero integer, then a multiplied by reciprocal of a is 1 upon a is equals to 1 upon a and reciprocal of 1 upon a is a, that is equals to 1, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में a से a कैंसिल, आंसर इज 1. For example, for any integer say 7, its reciprocal is 1 upon 7. Therefore, 7 multiplied by 1 upon 7 is equals to 1. Multiplicative identity. Hence, 7 and 1 upon 7 are multiplicative inverse of each other. Now, additive identity. The additive identity for integers is that number which when added to any integer gives the same integer. When we add 0 to any integer, we find the same integer. For example, 2 plus 0 is equals to 2, 0 plus 2 same, 2 ही आंसर आएगा, 15 plus 0 is equals to 15 is equals to 0 plus 15. Therefore, 0 is the additive identity and we can say in general for any integer a plus 0 is equals to 0 plus a is equals to a. Complete the following, 25 plus what we have to add, so answer will be 25. So we have to add 0. 0 plus 29 is equals to 29.
and minus 15 plus what we have to add? 0 is equals to minus 15. Next is additive inverse. The additive inverse of an integer is that number which when added to its opposite gives the result as 0. For example, 25 plus under bracket minus 25 is equals to 0 is equals to minus 25 plus 25. Therefore, 25 and minus 25 are additive inverse of each other. Now, next is some other special properties of 1 and 0. First is properties of 1. A part, successor of an integer or property of 1 under addition. Addition of 1 to any integer gives its successor. For example, 7 plus 1 is equals to 8. Minus 9 plus 1 is equals to minus 8. Therefore, 8 is the successor of 7 and minus 8 is the successor of minus 9. Now, B part. Predecessor of an integer or property of 1 under subtraction. It is obtained by subtracting 1 from the given number. For example, first is the predecessor of 1250 is 1250 minus 1 is equals to 1249. The predecessor of 1000 is 1000 minus 1 is equals to 999. Now, division by 1. We can say generally if a is any integer, then a divided by 1 is equals to a. Division by 1 gives the same integer as the quotient. See the following examples. First, 15 is divided by 1 is equals to 15 and minus 40 is divided by 1 is equals to minus 40. Now, no more. For any integer a plus 1 is known as the successor of a and a minus 1 is known as the predecessor of a. Now, second is property of 0. First is under subtraction. Subtraction of 0 from any integer gives the same integer. We can say generally for any integer a minus 0 is equals to a. See the following examples. First, 12 minus 0 is equals to 12. Second is minus 9 minus 0 is equals to minus 9. Now, next under multiplication. See the following table. X की वैल्यूज गिवन है -4 and -4. -4 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल्स टू 16. -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 9. -4 मल्टीप्लाई बाय -3 मीन्स माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया. आंसर देखो सारे क्या हैं पॉजिटिव में है. -4 को -3 से मल्टीप्लाई किया 12. -4 को -2 से किया +8. -4 को -1 से किया 4. इसी तरह से -3 को -4 से किया 12. -3 को -3 से किया कितना आया 9. -3 को -2 से किया 6. -3 को -1 से किया 3. तो दैट मीन्स जब हमने नेगेटिव को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. राइट, यहाँ पे ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स थे. यहाँ तक नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, सारे इंटीजर्स क्या है पॉजिटिव. अब 0 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा क्या आया सारी सिचुएशंस में 0. अब पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. दैट मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तो आंसर हमेशा किस में आएगा हमारा नेगेटिव में आएगा. राइट, यहाँ पे भी ये 0 रहा तो सारे क्या रहेंगे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी 0. यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव थे अब पॉजिटिव. अब नेगेटिव और पॉजिटिव सारे क्या आए नेगेटिव. यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है वहाँ भी पॉजिटिव है तो सारे किस में आए पॉजिटिव में. दैट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को किया तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पॉजिटिव आएंगे. इज द
multiplication table symmetrical about the diagonal joining the upper left corner to the lower right corner? Yes. Observe the colored row and column. 0 multiplied by 0 is equals to कितना रहा हमारा 0. -3 multiplied by 0 is 0. -4 multiplied by 4 is equals to -16. -3 multiplied by 1 is equals to -3. Now next is under division. When 0 is divided by any non-zero integer, the result will be always 0. See the given example first. 0 is divided by 15 is equals to 0. And second, 0 is divided by -10 is equals to 0. No more. A non-zero number cannot be divided by 0. That is, a divided by 0 is equals to meaningless. मीन्स हम किसी को भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. नाउ एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पार्ट. 1552 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस अंडर ब्रैकेट -1552 मल्टीप्लाई बाय 97. सॉल्यूशन करते हैं इसका. यहां पे हम देख रहे हैं कि दो वैल्यू सेम है, सिर्फ किसका डिफरेंस है, माइनस का. ठीक है, तो हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं और 1552 को कॉमन ले लेते हैं. ले लिया, माइनस कॉमन लिया एंड 1552 को कॉमन लिया, मल्टीप्लाई बाय, यहां से क्या बचा हमारा, माइनस बाहर कॉमन आ गया, 1552 कॉमन आ गया तो +3 बचा, +3 और यहां से हमारा क्या बचा 97. तो हम देख रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं. a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a को कॉमन लिया मल्टीप्लाई बाय b प्लस c. तो यहाँ पे a हमारा है 1552 माइनस 1552 एंड b इज 3 एंड c इज 97. तो 3 प्लस 97 किया दैट इज इक्वल्स टू 100. मल्टीप्लाई किया, कितना आया आंसर, -155200. नाउ बी पार्ट करते हैं. 1985 मल्टीप्लाई बाय 99 माइनस अंडर ब्रैकेट -1985. यहाँ पे भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, राइट. सेम प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है 1985 और 1985 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बट 1 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1985 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे. 1985 मल्टीप्लाई बाय 99 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया 1985. तो 1985 को हमने लिया कॉमन, यहाँ से बचा 99 और यहाँ पे 1 कर दो तो सेम ही रहेगा 1985. तो यहाँ हमारा आया 1. तो 1985 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 198500. यहाँ पे भी हमारी सेम प्रॉपर्टी यूज हुई है. नेक्स्ट थर्ड सी एग्जाम्पल में क्या हुआ, हमारी मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है. यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है. नाउ सी पार्ट करते हैं इसका. सी पार्ट में हम देखेंगे हमारी मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज हो रही है. ऊपर एडिशन है, नीचे सब्ट्रैक्शन है. यहाँ पे हम देखेंगे 444 दोनों में कॉमन है, तो 444 हमने कॉमन लिया. यहाँ से बचा हमारा कितना 2345 माइनस 345, यहाँ से हमारा -345. तो 2345 में से -345 को हमने क्या किया, माइनस किया, तो हमारा कितना बचा 2000. तो 444 मल्टीप्लाई बाय 2000 इज इक्वल्स टू 888000. ये हमारा आंसर रहा. नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग. फर्स्ट इज यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर इंटीजर एंड इवेल्युएट. यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन है. तो इसको जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किया उसी तरह से आप खुद ट्राई करेंगे. सेकेंड है वेरीफाई 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट -5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट -5 मल्टीप्लाई बाय 6. यहाँ हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है. पहले हमने ए और बी को सॉल्व करके सी को मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी की ग्रुपिंग की है. तो ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ थर्ड इज डिवीजन ऑफ 0 है, राइट. तो वो भी सारे फिलअप्स आप खुद ट्राई करेंगे. इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स. वी विल स्टडी हियर डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स एंड देयर प्रॉब्लम्स. Let us solve some problems on them. Now example 1.
Rakesh Sharma has taken a loan of amount rupees 4 lakh from 5 different banks. If he has taken the same amount from all the banks, what is the loan amount in each bank? Solution करते हैं. Total loan amount is equals to rupees 4 lakh and number of banks कितने हैं? 5. तो taken a loan amount in each bank कि एक बैंक से उसने कितना लोन लिया, तो टोटल लोन कितना है? टोटल लोन जितना उसने लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैंक्स. सो 4 lakh is divided by 5 is equals to rupees 80,000. Now example 2. Karthik has attempted staff selection commission examination in which every correct answer is assigned plus 2 marks and for every 3 incorrect answer 2 marks will be reduced. No negative marking for questions that are not attempted. Out of 180 questions, if she has answered 150 correct, 30 wrong and left 10 unattempted, what is his score? सॉल्यूशन करते हैं इसका. क्या गिवन है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली आर कितना है? 150 एंड मार्क्स कितने असाइंड है? मार्क्स असाइंड फॉर ईच करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 2. तो टोटल मार्क्स स्कोर्ड फॉर करेक्टली आंसर इज इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 300. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड इनकरेक्टली कितना है? 30. फॉर एवरी 3 इनकरेक्ट आंसर्स कि अगर 3 इनकरेक्ट आंसर देता है तो मार्क्स आर डिडक्टेड इज इक्वल्स टू 2. तो 3 क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होने हैं. फॉर एवरी 1 इनकरेक्ट आंसर मार्क्स आर डिडक्टेड 2/3. राइट, तो एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना डिडक्ट करेंगे? 2/3. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितने रॉन्ग आंसर्स हैं? 30. फॉर 30 रॉन्ग आंसर्स मार्क्स आर डिडक्टेड इज इक्वल्स टू 2/3. हमारा 1 इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स डिडक्टेड है, हमारे कितने हैं? 30. तो 3 1 जा 3, 0, 10 2 जा 20. 20 मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए फॉर रॉन्ग आंसर्स. नाउ टोटल स्कोर ऑफ कार्तिक इन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन इज इक्वल्स टू कितना था? 300 उसने करेक्ट आंसर के लिए स्कोर किया, -20 उसके डिडक्ट हो गए फॉर इनकरेक्ट, तो उसके मार्क्स कितने रहे? 280 मार्क्स. नाउ एग्जाम्पल 3. A submarine has reached 6,000 feet below the sea level. If it rises at the rate of 20 feet per minute, what is the position of the submarine after 4 hours? Solution करते हैं इसका. कितनी डेप्थ गिवन है? गिवन डेप्थ ऑफ द सबमरीन इज 6,000 feet below the sea. कहाँ है? For below the sea level. Rate at which the submarine is rising is equals to 20 feet per minute. मीन्स 1 मिनट में वो 20 फीट क्या आएगी? ऊपर आएगी. सो द सबमरीन विल राइज इन 4 hours इज इक्वल्स टू 4 घंटे में कितनी ऊपर आएगी वो? 4 hours में कितनी आएगी? 20 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 60. क्योंकि 20 फीट आ रही है वो 1 मिनट में, 20 फीट आ रही है वो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 4 घंटे में, 4 घंटे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स. तो हमारी 4 hours को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? मिनट्स में. 4 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 4 6 जा 24 और 1 मिनट में आ रही है वो 20, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 80 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल्स टू 4800 फीट. आफ्टर 4 hours द पोजीशन ऑफ सबमरीन इज इक्वल्स टू -6000. -6000 क्यों लगाया? क्योंकि वो बिलो सी लेवल है. वो कहाँ है? सी लेवल तक हमारा क्या है? 0. उससे नीचे जाएगा तो माइनस, उससे ऊपर जाएगा तो प्लस. बिलो सी लेवल है तो -6000 में प्लस करेंगे 4800, तो अभी कहाँ पे है? -1200 फीट. मीन्स वो सी लेवल से अभी 1200 फीट नीचे है. हेंस द सबमरीन will be at the depth of 1200 feet below the sea level after 4 hours. Now example 4. The temperature on a particular day in Muzaffarnagar is as follows. In the morning it was 6 degrees Celsius, then it went down to -8 degrees Celsius by 11 am. It continued at that temperature for 5 hours
and then increased by 6 degrees Celsius. What is the temperature in Muzaffarnagar at 4 p.m.? It's it above the freezing point or below the freezing point? Solution करते हैं इसका. क्या गिवन है? द टेम्परेचर ऑफ मुजफ्फरनगर इन मॉर्निंग. मॉर्निंग में कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ऑफ मुजफ्फरनगर एट 11 AM इज -8 डिग्री सेल्सियस. 11 बजे वहां का टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस. आफ्टर 5 आवर्स द टेम्परेचर इज इक्वल्स टू -8 डिग्री सेल्सियस प्लस 6. 5 घंटे के बाद 6 डिग्री से बढ़ गया तो हमारा कितना आया? -2 डिग्री सेल्सियस. सिंस द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 6 डिग्री सेल्सियस, बाय 6 डिग्री, जितना है उसमें 6 डिग्री को हमने ऐड कर दिया. सो द टेम्परेचर इन मुजफ्फरनगर एट 4 PM इज -2 डिग्री सेल्सियस विच इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ एग्जाम्पल 5. सिंप्लीफाई. 59 minus under bracket 32 minus under bracket 15 minus under bracket 70 minus under bar 13 minus 3 and all brackets close. Solution करते हैं इसका. We have 59 minus, हम क्या करेंगे? हम 1 by 1 ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे. एज इट इज हमने लिखा, बार को सॉल्व किया. 13 minus 3, 13 minus 3, 13 में से 3 माइनस हुआ, कितना बचा? 10. अब हम क्या करेंगे? सबसे छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. 70 minus 10, 70 minus 10 इज 60. 60 के बाद हम ब्रेसेस वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. 15 minus 60 इज इक्वल्स टू कितना रहेगा? -45. -45 करेंगे, बाहर माइनस है और यहाँ पे हमारा -45 आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो +45. अब 32 + 45 दोनों पॉजिटिव है, कितना आएगा? 77. लेकिन बाहर कितना है? माइनस. तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस. 59 minus 77, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, माइनस हो जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज 18. और जो भी ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू है, ग्रेटर क्या है? -77, तो आंसर विल बी -18. तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले मिड, सबसे छोटी ब्रैकेट को, पहले बार को, फिर स्मॉल को, फिर ब्रेसेस को, फिर बिग ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग. फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों ही क्या है हमारे? अभी जो हमने सिंप्लीफाई किया है उसी तरह से हम सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, देन ब्रेसेस एंड देन बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. सेकंड इज अ सबमरीन इज सिचुएटेड एट ए डेप्थ ऑफ 650 feet below the sea level. If it goes 130 feet further deep into the sea, what is the position of the submarine? 650 फीट बिलो है वो सी लेवल के और वो और नीचे चली गई. फर्दर डीप का मतलब है हम 650 में 130 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. दैट विल बी द आंसर. तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसकी रिवीजन आप खुद करेंगे.